Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine. Students, today we will do poem Dear Mr. Examiner, and this poem has been written by Gareth Owen. He is a British poet and he is famous for his plays and storybooks for children especially, as well as for his novels for young adults. Students, can you tell me the poem is about what? Here you have been given a picture. Can you guess from the picture, or can you guess from the name of the poem Dear Mr. Examiner? Students, this humorous poem is narrated by a student sitting in an examination hall. पिक्चर किसकी? ये एग्ज़ामिनेशन हॉल की है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं. So this humorous poem is narrated by a student sitting in an examination hall. She cannot write any of the answers because she did not study. अब इन स्टूडेंट्स में से एक ऐसी स्टूडेंट भी है जिसके पास क्वेश्चन पेपर है, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है क्योंकि वो पढ़कर नहीं आती है. एंड डियर मिस्टर एग्जामिनर, आई होप यू नो दैट हु इज़ एग्जामिनर. In an examination hall, a teacher who takes exam of the students. जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो टीचर होती है जो स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम लेती है, that's called examiner. Okay students. Now students, I tell you about what poetic device has been used in the poem. Just see in each paragraph second and fourth line. Just see second and fourth line in each paragraph, and the last word of the second and fourth line, like through, to, day, say, informally, me, guff, cuff. So you just can see that the last word of second and fourth line sound same. जो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है, इनकी जो साउंड है वो सेम आ रहे हैं, जैसे लाइक डे, से, इनफॉर्मली, मी, गफ, कफ. सो इट इज़ कॉल्ड एज रिदम स्कीम. कौन सी स्कीम यूज़ की गई है इस पोएम में? रिदम स्कीम. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई रीड द होल पोएम. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम स्टेंजा वाइज. ओके स्टूडेंट्स, thank you so much for your questions. I have read them most carefully through, but there isn't a single one of them that I know the answer to. I have written my name as instructed, put the year, the month and the day, but after I had finished doing that, I had nothing further to say. So I thought I would write you a letter, fairly informally, and what I can see from my desk here and what it's like to be me. Mandy has written 10 pages, but it's probably frightful guff, and Angela Smith is copying the answers of her cuff. Miss Quinlan is marking our homework. The clock keeps ticking away. I suppose to anyone outside, it's just another day. There will be mothers going on errands, grandmothers sipping tea, unemployed men doing crosswords or watching Crown Court on TV. The rain has finally stopped here. The sun has started to shine, and in a back garden in Sefton Drive, a housewife hangs shirt on a line. A Class-5 is passed to play tennis. The cathedral clock has just pealed. A mower chugs backwards and forwards upon the hockey field. Miss Quinlan's just read what I have written. Her face is an absolute mask. Before she collects the papers in, I have a sort of favor to ask. I thought your questions were lovely,
I have only myself to blame. But couldn't you give me some marks for writing the date and my name? So students, now I am going to explain you the whole poem stanza wise. Thank you so much for your questions. I have read them most carefully through, but there isn't a single one of them that I know the answer to. अब स्टूडेंट क्या है जो एग्ज़ामिनर को थैंक यू कर रहा है कि आपने मुझे जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसके लिए आपका थैंक यू। मैंने उस क्वेश्चन पेपर्स में से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, केयरफुली, मतलब बहुत ध्यान से पढ़े हैं, बट देयर इज़ंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू। लेकिन उन क्वेश्चंस में से एक भी ऐसा नहीं है, देयर इज़ंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू, जिसका कि आंसर मुझे आता हो। I have written my name as instructed, put the year, the month and the day, but after I had finished doing that, I had nothing further to say. स्टूडेंट्स, जब आप भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके मन में भी काफ़ी डर होता है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्ज़ाम हमारा पेपर कैसा होगा। तब उस समय एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अबाउट द क्वेश्चन पेपर, कि हम क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाएंगे या नहीं, हमें आंसर आते होंगे या नहीं। सो उस यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी भी जो माइंड है, माइंड की जो कह सकते हैं कंडीशन है, वो भी कुछ ऐसी ही है। सो आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर, द मंथ एंड द डे, बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से। अब उस स्टूडेंट का कहना है कि जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था, जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ऐसे यहाँ पर नाम लिखो, यहाँ पर आप डेट लिखो, मंथ ईयर लिखो साथ में, तो वैसे ही एग्ज़ामिनर ने उन बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप पूरी वैसे ही नाम लिखो शीट पर, डेट, मंथ, ईयर लिखो। उसका कहना है कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से, कि यह सब चीज़ें फिनिश करने के बाद, लिखने के बाद मेरे पास आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैड नथिंग फर्दर टू से, मेरे पास आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई थॉट आई वुड राइट यू अ लेटर फेयरली इनफॉर्मली अबाउट वॉट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हेयर एंड वॉट इट्स लाइक टू बी मी। सो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक लेटर लिखूँगी फेयरली इनफॉर्मली, इनफॉर्मल लेटर। Students, I hope you know about formal and informal letters. There are two types of letter. One is formal and second is informal. So she is thinking to write an informal letter to the examiner. अब उस लेटर में क्या लिखेगी वो? About what I can see from my desk here and what it is like to be me. कि मैं यहाँ अपने डेस्क पर बैठकर क्या क्या देख सकती हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो उस बारे में लिखूँगी उस लेटर में। एंड वॉट इट इज़ लाइक टू बी मी, और यही काम जो है मैं अभी यहाँ पर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ से सब स्टूडेंट्स को एग्जाम देख रही हूँ, उनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और वही मैं आपको लेटर में लिखूँगी, ऐसा वो स्टूडेंट सोच रही है। मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस बट इट्स प्रॉबेबली फ्राइटफुल गफ एंड एंजेला स्मिथ इज़ कॉपिंग द आंसर्स ऑफ हर कफ। अब वो वहाँ पर बैठी बैठी क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हैं? मैंडी ने कितने पेजेस लिखे हैं? 10 पेजेस लिखे हैं, बट इट इज़ प्रॉबेबली फ्राइटफुल गफ। फ्राइटफुल गफ का मतलब होता है कि उसमें जो भी उसने लिखा है 10 पेजेस, वो उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है, सब उसने सेंसलेस चीज़ें जो हैं उस शीट में लिखी हैं। 10 पेजेस उसने लिखी है लेकिन कुछ भी सेंसफुल नहीं है, सब सेंसलेस लिखा है, किसी का क्वेश्चन के साथ रिलेशन नहीं है। एंड एंजेला स्मिथ इज़ कॉपिंग द आंसर्स ऑफ हर कर्व, और एंजेला स्मिथ क्या कर रही है? वो कॉपी कर रही है द आंसर्स ऑफ हर कर्व, अपने कर्व से। स्टूडेंट्स, कर्व आपको पता है ये शर्ट के आगे की जो होते हैं इनको कहा जाता है कर्व, तो उसने कर्व के ऊपर कुछ लिखा है जिससे कि वो आंसर्स को कॉपी कर रही है। मिस क्विनलन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क, द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, आई सपोज टू एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे। मिस क्विनलन जो कि एग्ज़ामिनर है वो हमारा होमवर्क मार्क कर रही है एंड द क्लॉक्स कीप टिकिंग अवे, लेकिन जो क्लॉक है उसमें टाइम जो है आगे बढ़ता जा रहा है। टाइम क्या होता है? पास होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आई सपोज टू एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे।
वो स्टूडेंट क्या कर रही है कि किसी को क्लासरूम के बाहर इमेजिन कर रही है, क्योंकि अब उसको कुछ भी लिखना आ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है उसको आंसर। सो वो आई सपोज टू एनी वन आउटसाइड, अब वो क्लास के बाहर की बात कर रही है। इट्स जस्ट अनदर डे, लाइक अनदर डे। देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन एरेंड्स, grandmothers sipping tea, unemployed men doing crosswords और watching crown court on TV। अब वो और दूसरी जगह में हर माइंड इज़ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। सो अब वो सोच रही है कि जो मदर्स हैं वो एरेंड्स पर जा रही हैं। एरेंड्स का मतलब होता है एक जॉब होती है जो किसी पर्सन के लिए की जाती है, उसके लिए किसी चीज़ों को डिलीवर करना या कलेक्ट करना कुछ चीज़ों को। तो मदर्स जो है वो अपनी काम पर जा रही होंगी। ग्रैंड मदर सिपिंग टी, ग्रैंड मदर्स जो है वो चाय पी रही होंगी। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी। अनएम्प्लॉयड मैन ऐसे जिनके पास कोई काम नहीं है, वो या तो क्रॉसवर्ड मतलब कि पज़ल सॉल्व कर रहे होंगे, पज़ल जो न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स वगैरह में आते हैं उन पज़ल्स को सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर वो क्राउन कोर्ट जो कि एक प्रोग्राम का नाम है उस टीवी पर उसको देख रहे होंगे। The rain has finally stopped here. The sun has started to shine, and in a back garden in Safton Drive, a housewife hangs shirt on a line. अब फाइनली रेन जो है, बारिश जो है वो रुक गई है, सूरज ने शाइन करना स्टार्ट कर दिया है, चमकना शुरू कर दिया है। एंड इन अ बैक गार्डन इन सैफ्टन ड्राइव, सैफ्टन ड्राइव एक प्लेस का नाम है, उसके बैक गार्डन में हाउसवाइफ जो होंगी वो क्या कर रही होंगी, शर्ट सुखा रही होंगी ऑन क्लॉथ्स लाइन। मतलब क्लॉथ्स लाइन मतलब कि जिस पर हम क्लॉथ्स हैंग करते हैं टू ड्राई। तो हाउसवाइफ क्या है उस लाइन पर उस शर्ट को हैंग कर रही होंगी, सुखा रही होंगी। अ क्लास 5 पास्ड टू प्ले टेनिस, द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पिल्ड। क्लास जो है वो टेनिस खेलने के लिए रेडी हैं। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पिल्ड, कैथेड्रल का मतलब होता है जो मेन चर्च होता है उसके में जो क्लॉक लगी हुई है उसमें हैज़ जस्ट पिल्ड, उसके अंदर जो रिंग है वो ज़ोर ज़ोर से बजना स्टार्ट हो गई है, ज़ोर ज़ोर से बज रही है। अ मावर चर्क्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अपॉन द हॉकी फील्ड। मावर का मतलब होता है एक मशीन जो कि ग्रास कट करने के लिए यूज़ की जाती है। चक्स का मतलब होता है धीरे धीरे उस मशीन को मूव करना, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे पीछे उसको मूव करना अपॉन द हॉकी फील्ड। कहाँ पर? हॉकी फील्ड में। मिस क्विनलन्स जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन, हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क, बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क। मिस क्विनलन ने जो भी मैंने लिखा है उन्होंने वो पढ़ा है। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क, उनके फेस के एब्सोल्यूट मास्क तो स्टूडेंट नाउअडेज़, एक तो मास्क वो होता है जो नाउअडेज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपने माउथ को कवर करने के लिए, और एक मास्क होता है जिसमें कि कोई एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क कि उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, बैड एक्सप्रेशन गुड एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है उसके फेस पर। बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, तो वो स्टूडेंट सोचती है कि इससे पहले कि जो एग्ज़ामिनर है मिस क्विनलन है वो पेपर कलेक्ट करे, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं उनसे करना चाहती हूँ। आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली, आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम। अब वो क्या पूछना चाहती है कि वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो आपके क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, बट आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, लेकिन मैं अपने आप को ही ब्लेम करती हूँ, मेरा ही फॉल्ट है। बट क्या आप मुझे कुछ मार्क्स दे नहीं सकते, जो मैंने डेट और नेम लिखा है क्या उसके मार्क्स मुझे नहीं मिल सकते। सो स्टूडेंट शी नोज़ दैट शी हैज़ डन नथिंग, उसे पता है कि उसने कुछ नहीं किया है, बट शी वॉन्ट मार्क्स, फिर भी वो मार्क्स चाहती है, किस लिए कि उसने जो डेट लिखी है और उसका जो नाम लिखा है उसके लिए उसको कुछ मार्क्स मिले। So students, I hope this poem is clear to you. Students, you have to again read this poem carefully with proper explanation. Okay students, thank you, bye bye, take care.